Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum guys. This is Mughees Riaz, your course instructor, a lab instructor for the course of communication system. I hope so you guys are doing well, and I do pray that all of you must be safe and your families as well from this COVID-19 situation. Okay, so the last time we have performed the lab which is called pulse width modulation, और उससे पहले हमने एक lab perform की थी जिसका नाम था pulse amplitude modulation. तो this one is the last for the analog signals. हम उसकी थोड़ी सी details देखेंगे आगे कि इसमें further हमने क्या difference था इन सारी modulations के दरमियान और किसके क्या advantages हैं disadvantages हैं. So this is basically a lab number 9. We are going to proceed with that. The objective of the lab is to study and analyze the PPM modulator and demodulator. So basically हम इसकी दोनों चीज़ें observe करेंगे, PPM pulse position modulation and उसकी demodulation. तो पहले हम थोड़ा सा observe कर लेते हैं कि what is basically a pulse position modulation is. तो pulse position modulation is an analog modulating scheme in which the amplitude and width of these pulses are kept constant, while the position of each pulse with reference to the position of a reference pulse varies according to the instantaneous sampled value of the message signal. Likewise, in the previous modulation schemes we have performed, हमने उनकी amplitude और width vary की थी, लेकिन in this case pulse position modulation के केस में होता ये है कि हमारे पास width of the pulse और amplitude of the pulse are kept constant, while the position जो है वो हमारे पास change होती है according to the instantaneous sampled value of the message signal. तो वो message signal को follow करके change होगी. The transmitter has to send synchronizing pulses or simply sync pulses to keep the transmitter and receiver in synchronism. Synchronism इसका बहुत important part है, वो demodulation के अंदर बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरी चाहिए होता है. These sync pulses help maintain the position of the pulses. The following figure explains the pulse position modulation. एक हमने सिंपल हमारे पास साइन वेव है, उसका एम्पलीट्यूड गिवन है जिसे हम बेस बैंड सिग्नल कहते हैं. अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें पीरियोडिक सिक्वेंशियल पल्स ट्रेन के अंदर तो ये हमारे पास सिंपली इस तरह की सेम ड्यूरेशन तक की है और हमारे पास एक जनरेशन हो गई है सिग्नल की जो कि एक जिसे हम पल्स ट्रेन भी कह सकते हैं. लेट्स ऑब्जर्व. अच्छा, तो बेसिकली होता ये है कि पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन हमेशा पल्स विद विड्थ मॉड्यूलेशन से जनरेट होती है. ये चीज़ आपने ज़रूर माइंड में रखनी है. कैसे जनरेट होगी, हमेशा ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि जो भी इसका डिसीविंग पार्ट होगा, जो भी इसका डाउन पार्ट आ रहा होगा, वहाँ से ही हमेशा हमारे पास एक पल्स पीपीएम का हमारे पास सिग्नल जनरेट होगा. ये कांस्टेंट टाइम के लिए है, कांस्टेंट पीरियड के लिए ही हमारे पास जनरेट हो रहा होता है. तो हम इसको जब हम इसको सिमुलिंक पे भी ड्रॉ करके देखेंगे तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये हमारे पास किस तरह शो हो रहा है. उसके लिए हम मोनोस्टेबल यूज़ कर रहे होते हैं तो हम उससे चेक करेंगे कि हमारे पास ये कांस्टेंट ड्यूरेशन के लिए कैसे हमें जनरेट करके दे रहा है सिग्नल. तो अगर आप अभी ऑब्जर्व करें तो हमेशा एक पीडब्ल्यूएम सिग्नल से ही हमारे पास पीपीएम सिग्नल जनरेट होगा. ये बात आपने काइंडली ध्यान में रखनी है. जो भी उसका डाउन पार्ट आ रहा होगा वहाँ से आपके पास पीपीएम सिग्नल जनरेट हो रहा होगा और बाकी ईच एंड एवरीथिंग वो हमेशा उसको पीडब्ल्यूएम को फॉलो कर रहा होगा. तो थोड़ी सी थ्योरी, यही चीज़ जो मैंने आपको बताई है इसको हम थोड़ा सा दोबारा पढ़ लेते हैं. Pulse position modulation is done in accordance with the pulse width modulated signal. Each trailing of the pulse width modulated signal, वही जो मैंने आपको कहा कि डाउन पार्ट जो है, each trailing of the pulse width modulation signal becomes the starting point for pulses in PPM signal. तो ये ट्रेलिंग पार्ट था, ठीक है, और यही स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा हमारे पास PPM सिग्नल का. Hence, the position of these pulses is proportional to the width of the PWM signals. So position जो है वो PWM signal को follow करके चल रहा होता है. तो advantage हमारे पास basically क्या है? Advantage ये है as the amplitude and the width are constant. क्योंकि amplitude और width हम छेड़ ही नहीं रहे, हमेशा position अब इस केस में हम छेड़ेंगे. तो amplitude और width हमारे पास जब constant है तो power handled is also constant. डिसएडवांटेजेस वही मैंने आपको पहले भी बताया कि डिसएडवांटेज क्या है. द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज अ मस्ट, जो कि एक थोड़ा मुश्किल होता है पीपीएम सिग्नल के लिए.
हम आगे मूव करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास लास्ट वो है, इसके बाद हम जाएंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग्स, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग्स के ऊपर। तो हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि हमें, ताकि समझ में आ जाए कि हमने क्या क्या चीज़ कवर की है। तो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन दो तरह की हैं, कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन और पल्स मॉड्यूलेशन। कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन में शुरू की लैब्स जो हमने परफॉर्म की वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन थी। एंगल मॉड्यूलेशन में फर्दर हमने परफॉर्म किया था फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और पीएम मॉड्यूलेशन, जो कि फेज मॉड्यूलेशन भी था हमारे पास। अगर हम जाएं पल्स मॉड्यूलेशन, तो ये हमारे पास दो तरह की होती है, एनालॉग मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन को हम बाद में देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम एनालॉग मॉड्यूलेशन पे थे, तो हमने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देख ली, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन देख ली, और लास्ट वन जो अब हम देख रहे हैं, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। What are the differences between, what is the comparison between PAM, PWM and PPMR? तो ये बेसिकली एक टेबल है, इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमने पहले क्या किया और हम अब क्या कर रहे हैं। The comparison between the above modulation process is presented in a single table. PAM, amplitude is varied, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था, एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है। PWM, विड्थ वेरी हो रहा था, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन था तो विड्थ वेरी हो रही थी। PPM, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, तो पोजीशन इज वेरिड और विड्थ और एम्पलीट्यूड इसके केस में सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। बैंडविड्थ डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ द पल्स, ऑब्वियसली उसकी बैंडविड्थ उस पर ही ऑब्जर्व कर रही थी। PWM में भी बैंडविड्थ डिपेंड्स ऑन द राइज टाइम ऑफ द पल्स, ठीक है। जबकि पीपीएम के केस में बैंडविड्थ डिपेंड्स ऑन द राइज टाइम ऑफ द पल्स, सेम वही, क्योंकि ये पीडब्ल्यूएम को ही देख के पीपीएम चल रहा है, तो इसी के लिहाज से बैंडविड्थ हमारे पास डिपेंड कर रही होगी। इंस्टेंटेनियस ट्रांसमीटर पावर वेरीज विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्सेस। एम्पलीट्यूड जब बढ़ेगा तो हमारे पास पावर बढ़ेगी, वेरी करेगी। इससे सेकंड पीडब्ल्यूएम के केस में इंस्टेंटेनियस ट्रांसमीटर पावर वेरीज विद द एम्पलीट्यूड एंड विड्थ ऑफ द पल्सेस, तो ये दोनों को ऑब्जर्व करके चल रहा होता है। लेकिन पीपीएम के केस में पावर जो है, मैंने पहले भी बताया, कांस्टेंट रहेगी। इंस्टेंटेनियस ट्रांसमीटर पावर रिमेंस कांस्टेंट विद द विड्थ ऑफ द पल्सेस, क्योंकि विड्थ और एम्पलीट्यूड इसमें वेरी नहीं कर रहा होता, कांस्टेंट होते हैं। सिस्टम कम्प्लेक्सिटी इज हाई, पीडब्ल्यूएम के केस में सिस्टम कम्प्लेक्सिटी इज लो, एंड पीपीएम के केस में सिस्टम कम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो लो। नो इंटरफेरेंस, नॉइज इंटरफेरेंस इज हाई, पीएम के केस में, पीडब्ल्यूएम के केस में नॉइज इंटरफेरेंस इज लो, और सिमिलरली पीपीएम भी, क्योंकि पीडब्ल्यूएम पे रिलाई कर रहा है, तो नॉइज इंटरफेरेंस इसमें लो होती है, और ये एक बार्टर सिस्टम होता है। इट इज सिमिलर टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पीएम है। इट इज सिमिलर टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एंड पीपीएम इट इज सिमिलर टू फेज मॉड्यूलेशन। तो पिछले लैब्स आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने ये किस तरह की है। सो परफॉर्मेंस ऑन सिमुलिंक, फर्स्ट हम इसको एक सिमुलिंक के ऊपर परफॉर्म करके देखते हैं कि सिमुलिंक में हमारे पास रिजल्ट्स किस तरह के आ रहे हैं। देन हम उसको एक कोड की तरह फॉर्म करके देखेंगे, वो आपके लिए बेसिकली एक लैब टास्क होगा, उसका रिजल्ट्स आप मुझे जनरेट करके देंगे। फाइल आई विल प्रोवाइड यू द फाइल इन द वर्ड फॉर्म ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, सो काइंडली आप लोग उसका मुझे रिजल्ट जनरेट करके देंगे कि उसकी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कैसे हो रही है। तो कोड उसका थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस ऑन सिमुलिंक। तो डिजाइन ऑफ सिमुलिंक मॉडल for pulse position modulation is done in accordance with the pulse width modulated signal। मैंने पहले भी कहा, अगेन कह रहा हूँ कि pulse width modulation से जनरेट हो रहा है, तो उसी से ही हम इसको फर्दर जनरेट करेंगे। Each trailing of the pulse width modulated signal becomes the starting point for the pulses in PPM signal। वही अगेन बात कि जो भी ट्रेलिंग पॉइंट होगा PWM का, वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा PPM का। Hence the position of these pulses is proportional to the width of the PWM pulses। तो वो उसकी प्रोपोर्शनैलिटी पे चलेगा। ये बेसिकली एक हमारे पास सिमुलिंक का मॉडल है। तो इसके अंदर हमने बेसिकली क्या किया हुआ है कि हमने एक साइन वेव ली, और ये पल्स जनरेटर से हमने उसे पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो साइन वेव हमारे पास एक बेसिकली क्या है, मैसेज सिग्नल है, ठीक है। और यहाँ पर आप सॉटूथ जनरेटर देख रहे होंगे, तो ये हमारे पास एक कैरियर सिग्नल है। तो बेसिकली दोनों हमारे पास कम्बिनेशन ही जा रहा होता है। कैरियर सिग्नल के ऊपर मैसेज सिग्नल हमारे पास इंप्लीमेंट होके जा रहा होता है, तो उसको उसने पल्सेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और ये एक ब्लॉक उसने यूज़ किया सैंपल एंड होल्ड का, आपको मिल जाएगा सिमुलिंक के अंदर। तो सैंपल एंड होल्ड बेसिकली करता क्या है,
सैंपल एंड होल्ड एक बेसिकली इज अ सर्किट, अगर हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें, दैट इज यूज्ड टू टेक अ चेंजिंग एनालॉग सिग्नल एंड लिटरली होल्ड इट। मतलब उसको होल्ड करेगा, जो चेंजिंग एनालॉग सिग्नल होगा उसको होल्ड करेगा, so that a following circuit or system such as an ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन ही हो रही है। ये कंपैरेटर के केस में जाके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कंपैरेटर की दोनों इनपुट्स एनालॉग होती हैं लेकिन आउटपुट हमें वो डिजिटल देता है। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जब भी होगी, हैज द नेसेसरी टाइम इट नीड्स टू प्रोसेस इट। तो वो एक स्पेसिफिक टाइम प्रोवाइड कर देता है सैंपल एंड होल्ड, ताकि आप अपने सिग्नल को प्रोसेस कर सकें। और कंसिस्ट किस पे कर रहा होता है हमारे पास सैंपल एंड होल्ड? एट इट्स सिंपलेस्ट अ सैंपल एंड होल्ड सर्किट इज अ कैपेसिटर एंड अ स्विच। तो कैपेसिटर और स्विच की बेस पे हमारे पास इसके अंदर चीज़ें होती हैं जो कि इसको होल्ड कर रहा होता है। जब वो सिग्नल को होल्ड करता है तो एक स्पेसिफिक टाइम प्रोवाइड कर देता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के अंदर के सिग्नल को वो ऑब्जर्व कर सके। ठीक है। देन हमारे पास सेकंड पे हमारे पास क्या यूज हुआ हुआ है? एक कंपैरेटर यूज हुआ हुआ है। मैंने पहले भी आपको एक बात बताई कि कंपैरेटर क्या कर रहा है। कंपैरेटर आपको दो इसकी इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, तो दो एनालॉग इनपुट्स होंगी, ये भी एनालॉग सिग्नल है, ये भी एनालॉग सिग्नल है, जबकि जनरेट ये आपको एक डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में कर रहा होगा। तो कंपैरेटर को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे यार, कंपैरेटर हमारे पास बेसिकली क्या होता था, जिसकी दो इनपुट हैं, इनपुट वन, इनपुट टू एंड आउटपुट वन। So in electronics, a comparator is a device that compares two voltages or currents and outputs a digital signal indicating which is larger. तो ये बेसिकली हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देखा था कि दो वोल्टेजेस या दो करंट्स को ऑब्जर्व करता था और एक डिजिटल सिग्नल हमें जनरेट करता था, और जनरेट कर रहा हमें बताता था कि दोनों में से कौन सी वैल्यू हाई है। तो इसके केस में हम दो सिग्नल्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो दो सिग्नल्स को ये चेक करेगा कि कौन सी किसकी वैल्यू जब हाई है तो उससे रिलेटेड उसका एक डिजिटल आउटपुट जनरेट कर देगा। ठीक है। इट हैज अगेन वही बात, all converted in English. It has two analog input terminals and one binary digital output. The output is ideally. So ये हमारे पास बेसिकली कहानी थी सारी कंपैरेटर की। अगर अब हम इसको मोनोस्टेबल को देखें कि यार मोनोस्टेबल हमारे पास वाइब्रेटर, शायद आपने मल्टी वाइब्रेटर आपने सुना हो कि मोनोस्टेबल करता क्या है। मोनोस्टेबल मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एक इक्वली कांस्टेंट ड्यूरेशन के लिए आपके पास पल्सेस जनरेट कर रहा होगा, जैसे कि आप अभी नीचे ऑब्जर्व करेंगे, मैं अभी आपको दोबारा दिखाऊंगा। तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर also called a one shot is a sequential logic electronic circuit that generates an output pulse. When triggered, a pulse of predefined duration is produced. जो आप ड्यूरेशन जैसे इसके केस में अभी आप देख रहे होंगे 0.1 सेकेंड की हैं, तो 0.1 सेकेंड की आपको ड्यूरेशन में जनरेट करेगा। The circuit then returns to its stable state and produces no more output until triggered again. तो जब तक इसको दोबारा ट्रिगर नहीं करेंगे तो ये हमें एक फाइनल रिजल्ट दे देगा। तो ऑसिलोस्कोप हम एक फाइनली जनरेट पुट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास मल्टी मोनोस्टेबल से भी आ रही है, इसके बाद हमारे पास कंपेरेटर के बाद भी एक वेव फॉर्म आ रही है, और एक जनरल वेव फॉर्म जो हमारे पास आ रही थी जो कि सॉटूथ जनरेटर से भी जा रही है और साइन वेव से भी जा रही है, तो वो भी हमारे पास इसके ऊपर जनरेट हो रही है। तो इसको अगर हम आप ऑब्जर्व करेंगे तो तीन वेव फॉर्म्स हैं। फर्स्ट वही सॉटूथ और साइन वेव के फॉर्म में जो जनरेट हो रहा था, और देन ये आप ऑब्जर्व करें तो उसने उसको पल्सेस की फॉर्म में भी जनरेट किया हुआ है। ब्लू के अंदर अगर आप लोगों को नजर आ रहा होगा तो ये पल्सेस की फॉर्म में भी जनरेटेड है। तो इसका जब एक फाइनल सिग्नल निकला जो कि एक पीडब्ल्यूएम सिग्नल था, वो हमारे पास एक इस तरह का वेव फॉर्म शो हो गई पल्सेस की फॉर्म में, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की फॉर्म में। अब जहां जहां आप देखोगे कि ट्रेलिंग पॉइंट है, जैसे कि ये ट्रेलिंग पॉइंट था पीडब्ल्यूएम का, तो एक कांस्टेंट ड्यूरेशन का ही 1 सेकंड का ही आपके पास एक पीक जनरेट हुई। अगेन दिस इज द ट्रेलिंग पॉइंट जनरेट हुई, अगेन दिस इज द ट्रेलिंग पॉइंट जनरेट हुई। तो इसी तरह आप देखोगे तो कांस्टेंट ड्यूरेशन की आपके पास पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन जनरेट हो रही हैं जो कि पीडब्ल्यूएम सिग्नल से ही जनरेट हो रही हैं। हम आगे फर्दर चलते हैं, तो ये हम कोड की फॉर्म में भी है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो वही जैसे मैटलैब कोड में मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है कि हमने एक कैरियर फ्रिक्वेंसी दे दी, किस रेट पे वो सैंपल होना चाहिए, सैंपल फ्रिक्वेंसी दे दी, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन दे दी, इक्वेशंस आप लोगों ने पढ़ी होंगी, उसके लिहाज से उसने टाइम में एक जनरेट कर दिया x1
इक्वेशन के लिहाज से जनरेट कर दिया, y1 उसने इक्वेशंस के लिहाज से जनरेट कर दिया जो बेसिकली पीपीएम की आपने थियोरी के अंदर पढ़ी होंगी। सब प्लॉट वही 2 to 1 मैंने बताया था। उसने सिंपली एक प्लॉट किया, प्लॉट x1 को पहले प्लॉट करके देख लिया, उसने कहा ये सिंगल टोन मैसेज है, f1 जिसका 200 है और fs जिसका 10,000 है, ये वैल्यूज यहाँ से इसने उठाई। ठीक है, सब प्लॉट y कर दिया उसने, एक्सिस मेंशन कर दिए, y को उसने कर दिया कि ppm 1 साइकिल ऑफ f1 fc इज इक्वल टू 1000, f1 इज इक्वल टू 200। देन डी मॉड की इक्वेशन, मॉड्यूलेशन के लिए उसने मॉड्यूलेट की कमांड यूज की और डी मॉड्यूलेशन के लिए उसने डी मॉड की कमांड यूज की। मैंने ये कहा था कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स ही होता है, तो उसका वो रिकवर करना चाह रहा है x1 सिग्नल को, तो वो डी मॉड है, तो उसने सिंपली हमें दोबारा रिकवरिंग की वो करके प्लॉट कर दिया और ये उसका आपने टाइटल दे दिया। तो लैब टास्क बेसिकली इज, इसके अलावा मैं एक असाइनमेंट भी जनरेट कर रहा हूँ आपको, और इसकी भी आपने क्या करना है कि ये फाइल भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो काइंडली ये कोड परफॉर्म करके इसके जो रिजल्ट्स हों यू विल हैव टू पेस्ट इट हियर सो दैट आपके मैनुअल में लग सके। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द PPM signal. We will do a question answer session on Microsoft Team, so you guys can ask me the questions. Thank you. This is all about PPM. Thanks again.